ਹੈਲੋ ਬੱਚੋ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੋਗੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ 10th ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਲਈਏ, ਨੋਨ ਮੈਡੀਕਲ ਲਈਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਰਟਸ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਾਮਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਇੰਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਇੰਸ ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਇੰਸ। ਹਾਂ, ਫੈਕਟ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਇੰਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਤਾਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 5-4 ਲੈਕਚਰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਬਹੁਤ ਬੋਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਬੱਚਿਓ। ਗੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਥੇਮੈਟਿਕਸ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਅਗਰ ਫੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਮਝੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਕਿੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ 10ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10ਵੀਂ 10th ਤੋਂ ਬਾਅਦ +1 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਦੂਜੀ ਕਲਾਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਟੀਚਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਧਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਯੂਨਿਟ ਐਂਡ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਈਨਾਮੈਟਿਕਸ, ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਮੋਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਮਝਣ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ, ਔਰ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਥੇਮੈਟਿਕਸ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਥੇਮੈਟਿਕਸ ਦੀ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ? ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਔਰ ਸਹੀ ਟੀਚਰ ਕੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਹੀ ਟੀਚਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬੇਸਿਕ ਮੈਥੇਮੈਟੀਕਲ ਟੂਲਸ ਫॉर ਫਿਜ਼ਿਕਸ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਓ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਸਿਕ ਮੈਥੇਮੈਟਿਕਸ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇਗੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗੇਗੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਰਗਾ ਆਸਾਨ ਸਬਜੈਕਟ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਤੇ, ਆਪਾਂ ਮੈਥੇਮੈਟਿਕਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਮਝ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ। ਹੁਣ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਔਖੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੋਰਿੰਗ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਟਰਸਟ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਗਲਤੀ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਉਹ ਹੈ PCM ਟਿਊਟੋਰੀਅਲਸ। ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕ ਮੈਥੇਮੈਟੀਕਲ ਟੂਲ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀ ਜਰਨੀ ਨੂੰ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਵੀ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਔਰ ਸਾਇੰਸ ਕਿੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਔਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਬੇਸਿਕ मैथमेटिकल टूल्स। बेसिक मैथमेटिकल टूल्स फॉर फिजिक्स। बच्चों तुसी नाल दे नाल जिवें अपना टॉपिक खत्म होएगा तो पॉज करके स्क्रीनशॉट जरूर लेंदे रहो जे। अगर हो सके तो नाल दी नाल नोट्स बनाते रहो तो सब तो वधिया चीज़ है। हाँ जी, तो बेसिक मैथेमैटिकल टूल्स फिजिक्स स्टार्ट करने तो पहला आपको जरूर सीखने चाहिए ने। तो उस दे विच सब तो पहला आता अपने को वैक्टर्स। वैक्टर्स उस तो बाद सैकेंड नंबर पे अपने को है डेरीवेटिव। जिसनों आप डिफरेंशिएशन भी कहने हैं।
और थर्ड नंबर ते अपने को आउंदा है इंटीग्रल या फिर इंटैग्रेशन। चौथे नंबर ते अपने को आउंदा है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस तो बाद है अपने को लॉगरिथम, लॉग जिसनों आप कहने हैं। इस तो बाद अपने को आउंदा है वैक्टर हो गया, डेरिवेटिव हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, लॉगरिथम हो गया। इस तो इलावा अपने को कुछ ग्राफ्स होंगे ने बहुत इंपॉर्टेंट। सम स्टैंडर्ड ग्राफ, कुछ स्टैंडर्ड ग्राफ होंगे ने जो आपां नूं डायरैक्ट जो भी ड्रॉ करना हो तो आप डायरैक्ट ड्रॉ कर सकते हैं अगर आपां नूं स्टैंडर्ड ग्राफ्स का सही सही नॉलेज है। तो ये मैथमैटिकल टूल्स पढ़े बगैर अगर कोई फिजिक्स पढ़ना चाह रहा है और वो भी जब वो बच्चा 10th तो +1 आ रहा है और पहली दफ़ा फिजिक्स पढ़नी चाह रहा है, तो देखो अगर इस तो बगैर पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, इस तो बिना पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल वेस्टेज ऑफ टाइम है, किसी को नहीं करना चाहिए। सब तो पहला फंडामेंटल मैथमैटिक्स जो अपलाइड मैथमैटिक्स है, जो फिजिक्स के विच +1 तो लैके +2 तक, +1 दे 10 यूनिट्स, +2 दे 10 यूनिट्स, सब दे विच ये यूज़ होंदा रहेगा। तो क्यों ना होवे वो चीज़ जो बार बार यूज़ होनी है और उसको पहले ही पढ़ लिया जाए, क्योंकि जो आप मैथमैटिक्स पढ़ लवेंगे तो फिर एक ही फोकस रह जाएगा, फिजिक्स पढ़ना। और आप फिजिक्स के लिए आए हैं, फिजिक्स पढ़ने लिए तो पाए हैं। तो बच्चों सब तो पहला आप स्टार्ट करांगे वैक्टर्स, ठीक है। सब तो पहला आप स्टार्ट करांगे वैक्टर्स। अपना स्क्रीनशॉट नाल दी नाल तुसीं लेंदे रहो जे, कई बार असीं कहना भी भुल जाते हैं, तो नाल दी नाल स्क्रीनशॉट तुसीं ले लेना। तो स्टार्ट कर रहे हैं आप वैक्टर्स। तो 1 बाय 1 आप स्टडी करते जावांगे। सब तो पहला लैक्चर होंगे वैक्टर के उपर, उस तो बाद डेरीवेटिव, फिर उस तो बाद इंटीग्रल, जो आप सीक्वेंस लिखा है कोशिश करांगे इसे सीक्वेंस वाइज ही करते जाए। फिर ट्रिग्नोमेट्री, फिर लॉग, फिर स्टैंडर्ड ग्राफ। जो इन्ना मैथमैटिक्स आप पढ़ लवांगे फिर आप काबिल हो जावांगे फिजिक्स पढ़ने। तो फिर आप स्टार्ट करांगे कोर फिजिक्स। तो उस तो पहला इस दे विच फिजिक्स की गलबात भी होएगी और मैथमैटिक्स भी सीखांगे आप नाल दी नाल, जो मैथमैटिक्स जरूरी है, ठीक है। तो ये बेसिकली फिजिक्स की क्लास ही है, मैथमैटिक्स की नहीं है। तो फिजिक्स के लिए जो मैथमैटिक्स चाहिए वो आप पढ़ रहे हैं, और इसको पढ़े बिना वेस्टेज ऑफ टाइम है, फिजिक्स समझ नहीं आ सकती। और टीचर बहुत बड़ी गलती करते हैं और बच्चों नाल धोखा करते हैं। सही टीचर वो है जो पहले बेसिक मैथमैटिक्स पढ़ाएगा, उस तो बाद स्टार्ट करेगा फिजिक्स। तो स्टार्ट करते हैं आप वैक्टर्स। हाँ जी, वैक्टर्स दे विच की है, पूरी फिजिक्स के अंदर जिन्नियां भी फिजिकल क्वांटिटीज़ ने, जिन्नियां भी फिजिकल क्वांटिटी मतलब एंटायर फिजिकल क्वांटिटीज़, जिवें फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होंदियां ने, फिजिकल क्वांटिटीज़ होंदियां ने अपने कोल, जिवें मास, लेंथ, टाइम, स्पीड, वेलोसिटी, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ ने। जिवें जिवें आप फिजिक्स अगे पढ़ते जावांगे उवें उवें आप इंट्रोड्यूस होंदे जावांगे नवीं नवीं फिजिकल क्वांटिटीज़ नूं। लेकिन ये तो बिल्कुल बेसिक ने जो सारे जानते हैं, मास, लेंथ, टाइम, स्पीड, जो आप अपनी छोटी क्लास दे विच 8th 9th 10th स्टैंडर्ड तक इन्हां चीज़ों नूं थोड़ा बहुत पढ़ चुके होंगे। मास, लेंथ, टाइम, स्पीड, वेलोसिटी, वॉल्यूम,
weight, acceleration, अपना जिमें फॉर एग्जाम्पल प्रैशर एटसैट्रा। मुक्कदी गल यह है कि फिजिकल क्वांटिटीज वो होंदियां ने दैट इज समथिंग विच कैन बी मैजर्ड। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटीज लिए आप की बोलांगे विच कैन बी मैजर्ड, जिसनों नापया जा सकता है, जिसनों नापया जा सकता है, विच कैन बी मैजर्ड बाय एनी मैथड, डायरैक्ट और इनडायरैक्ट मैथड, कोई भी हो सकता है। जिमें मास नूं आपां मैजर करते हैं, मास नूं किस दे विच मैजर करते हैं, किलोग्राम के अंदर, केजी के अंदर, है ना। लेंथ नूं आपां मैजर करते हैं मीटर्स के अंदर, किलोमीटर्स के अंदर, सेंटीमीटर के अंदर, है ना। बिल्कुल इदा ही टाइम, टाइम आपां मैजर करते हैं आवर्स, सेकेंड्स, मिनट्स, सेकेंड्स। इदा हर जो फिजिकल क्वांटिटी होंगी उसके यूनिट होंगे ने। ठीक है, जिस दे विच आपां उसनूं क्वांटिटी नूं मैजर करते हैं। तो ये जो फिजिकल क्वांटिटीज़ ने, जिन्नियां भी फिजिकल क्वांटिटीज़ आपां फिजिक्स विच पढ़ांगे, अगर ब्रॉडली उन्होंने आपां डिवाइड करना होवे तो दो ग्रुप दे विच उन्होंने आपां डिवाइड कर सकते हैं। जो मेजर ग्रुप ने वो दो ही ग्रुप ने। ठीक है, उस तो अलावा एक तीसरा भी हुंदा है, लेकिन वो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, फिर भी आपां डिस्कस करांगे। तो तुसीं इसनूं नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी तुहानूं सूटेबल लगता है। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ विच कैन बी मैजर्ड, जो भी चीज़ मैजर की जा सकती है, जो भी चीज़ मैजर कर सकते हैं आप, उसनूं बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। और फिजिक्स दे विच हुंदियां ने फिजिकल क्वांटिटीज़, क्योंकि फिजिक्स दे विच की पढ़ते हैं आप, नेचर नूं स्टडी करने की कोशिश करते हैं। जो आप नेचर नूं स्टडी करने की कोशिश करते हैं तो आप की देखते हैं, अपने सामने कई तरह की ऑब्जरवेशनस ने, लेकिन अगर आप उन्होंने ऑब्जरवेशनस नूं कागज़ के उपर पुट फॉरवर्ड करना है तो फिर उन्होंने मैजर करना पेगा, रीडिंग्स नूं मैजर करना पेगा। तो विच कैन बी मैजर्ड वो होंदियां ने फिजिकल क्वांटिटीज़। और जो फिजिकल क्वांटिटीज़ ने उन्होंने आप डिवाइड कर सकते हैं ब्रॉडली दो ग्रुप्स के अंदर। ब्रॉडली आप दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, एक है स्केलर, दूसरा है वेक्टर। ये है वेक्टर जिसमें आप पढ़ने के लिए स्टार्ट किया अपना टॉपिक वेक्टर। तो दुनिया भर की जो फिजिकल क्वांटिटीज़ ने, जो फिजिक्स के अंदर आउंदियां ने, वो मेजर उसके दो ग्रुप ने। इस तो अलावा एक तीसरा ग्रुप भी है, उसनों आप बोलते हैं टेंसर। टेंसर, TENSORS, टेंसर्स। स्केलर, वेक्टर दो हो गया मेजर, और एक है टेंसर। जो स्केलर होंगे ने, हुण स्केलर की होंगे ने, स्केलर वो फिजिकल क्वांटिटीज़ ने जिन्होंने डिफाइन करने के लिए, जिन्होंने डिफाइन परिभाषित करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैगनीट्यूड की जरूरत होंगी है। ये चीज़ां आप मेरे ख्याल से 10th क्लास तो विच या इस तो पहला 8th 9th 10th विच किते ना किते जरूर पढ़िया होणगियां। स्केलर की होंगे ने, वैक्टर की होंगे ने, जो इसकी बेसिक डेफिनेशन है वो मेरे ख्याल सब नूं पता ही होंगी है। जिन्होंने नहीं पता तो पहली बार सुन रहे हैं तो जरूर नोट कर लें। स्केलर वो क्वांटिटीज़ होंदियां ने जिन्होंने डिफाइन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैगनीट्यूड यानी कि मात्रा, अमाउंट कितनी है वो चीज़, उसकी जरूरत होंगी है। तो विच कैन बी डिफाइंड ओनली बाय मैग्नीट्यूड।
ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮਾਸ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਤੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਪੁੰਜ ਕਿੰਨਾ, ਭਾਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਭਾਰ। ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦਾ ਜੀ 60 ਕਿਲੋ, 60 kg। ਤਾਂ 60 kg ਇਹ ਕਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ 60 kg। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਅਗਰ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੈਕਟਰ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ? ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ as well as direction is required, as well as direction is required to define vector। ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਵੇਂ ਫੋਰਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪੁਸ਼, ਧੱਕਾ, ਪੁੱਲ, ਖਿੱਚਣਾ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ 10 ਨਿਊਟਨ ਫੋਰਸ ਲਗਾਈ ਹੈ, 10 ਨਿਊਟਨ ਫੋਰਸ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 10 ਨਿਊਟਨ ਦੀ ਫੋਰਸ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ 10 ਨਿਊਟਨ ਫੋਰਸ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ 10 ਨਿਊਟਨ ਬਾਈ ਕਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਸਟਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਫੋਰਸ ਲਗਾਣਾ ਤਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਉਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲਗਾਣਾ ਤਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇੱਧਰ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਫੈਕਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਿਰਫ 10 ਨਿਊਟਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ ਨਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਫੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੈਕਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸਕੇਲਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਫੋਰਸ ਜਦ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਜੀ 10 ਨਿਊਟਨ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ? ਮੰਨ ਲਓ ਨਾਰਥ ਨੂੰ, ਟੁਆਰਡਸ ਨਾਰਥ। ਇਹ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰੀਏ ਔਰ ਕੈਟਾਗਰਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ, ਹੈ ਨਾ, ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰੀਏ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਮਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਲੈਂਥ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਪੀਡ ਹੋ ਗਈ, ਅਗਰ ਇੱਧਰ ਦੇਖੀਏ फोर्स हो गई, वेट हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट के नाल नाल अपने कोल वेलोसिटी हो गई, ठीक है, एक्सेलरेशन हो गई, होर भी बहुत सारिया, टॉर्क हो गई। तो देखो अपने को बहुत सारिया क्वांटिटीज इदां दी हैगियां ने जिस दे विच आपां जिसनूं आपां वैक्टर दी कैटेगरी च रख सकते हैं। फोर्स, वेट, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टॉर्क, है ना, इधर मास, लेंथ, टाइम, स्पीड, होर लिखनी है तो अपने को प्रेशर, वर्क, एनर्जी, ये सारे स्केलर ने ये नंबर। तो जिमें जिमें आप फिजिक्स पढ़ते जावांगे उवें उवें आप इन्हां क्वांटिटीज़ के रूबरू होंदे जावांगे। ये क्वांटिटीज़ अपने दिमाग दे विच बैठनी शुरू हो जाएंगे। जो आप इन्होंने डिफाइन करांगे तो जो आप हर क्वांटिटी को डिफाइन करांगे उस समय जरूर गल होएगी कि जी स्केलर है या वैक्टर है। तो ये क्वेश्चन
ਜੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਜਾਏਗੀ, आखिर तक अपने नाल चलेगी। क्वांटिटी स्केलर है, क्वांटिटी वैक्टर है, स्केलर है, वैक्टर है। कई बार तो बोर्ड की अगर गल करिए तो छोटे छोटे क्वेश्चन भी इहदे नाल रिलेटेड आ जाते हैं कि ये क्वांटिटी दसो स्केलर है या वैक्टर है ना। तो छोटी छोटी चीज़ां ने जिवें जिवें अगे वधदे जावांगे आपां नूं याद हुंदियां जाणगीਆਂ। हाँ जी, तो वापस आउंदे आ। स्केलर की है जिस दे विच सिर्फ मैगनीट्यूड की लोड़ पैंदी है। वैक्टर की है जिस दे विच मैगनीट्यूड दे नाल नाल डायरैक्शन की भी लोड़ पैंदी है। 10 न्यूटन मैगनीट्यूड हो गई और नॉर्थ डायरैक्शन हो गई, ये है वैक्टर। इसनूं आपां डिटेल स्टडी करना है क्योंकि स्केलर नूं डिटेल स्टडी करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इस दे लई जदों आपां स्केलर नूं प्लस करते हैं माइनस करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती, जिद्दां ऑर्डिनरी अलजबरा हुंदा उही फॉलो करते हैं। लेकिन वैक्टर नूं जदों आपां प्लस माइनस जोड़ते हैं, घटाउंदे हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके अपने ही लॉज ने, ठीक है, उही आपां पढ़ने ने वैक्टर के अंदर। हाँ जी, ये तीसरी क्वांटिटी ये की है टेंसर। ये जो लिख रखा है टेंसर, हुण दिमाग च आएगा कि ये सिर्फ मैगनीट्यूड है, ये मैगनीट्यूड के नाल डायरैक्शन भी है, लेकिन टेंसर की है, इन्हां दोनों नालों किदां अलग है। तो देखो टेंसर दे विच अगर आप गल करते हैं इसनों डिफाइन करना होवे तो 2 लाइनां दी चीज़ है। टेंसर वो क्वांटिटी हुंदी है जिस दे कोल डायरैक्शन भी हुंदी है, मैगनीट्यूड भी हुंदी है, दोनों हुंदे ने, डायरैक्शन भी हुंदी है और मैगनीट्यूड भी हुंदी है। डायरैक्शन के नाल नाल मैगनीट्यूड हुंदी है। फिर तुसीं सोचोगे, देखो नैचुरल है, दिमाग च सवाल आएगा, सब बच्चों के दिमाग में सवाल आएगा कि जे अगर इसके कोल डायरैक्शन भी है मैगनीट्यूड भी है तो देखो ये तो वैक्टर के केस भी सीगा, मैगनीट्यूड भी और डायरैक्शन भी, फिर इन्हों दोनों का डिफरेंस की होया या फिर इनू अलग तो क्यों पढ़ रहे हैं। देखो इनू अलग तो इसलिए आप पढ़ रहे हैं क्योंकि ऐसी क्वांटिटी जिस दे कोल डायरैक्शन भी है मैगनीट्यूड भी है, लेकिन जदों उसनों आप जोड़ते हैं या घटाने मतलब उसका जो एलजबरा है वो डिफरेंट होंदा है, क्योंकि जो टेंसर वो क्वांटिटीज़ ने जदों आप उन्होंने जोड़ते हैं या घटाने तो की होंदा है वो बिल्कुल स्केलर दे वांगू बिहेव करदियां ने, जिवें स्केलर क्वांटिटी होंदी है। डायरैक्शन और मैगनीट्यूड होने के बावजूद भी जदों आप इसका एलजबरा पढ़ते हैं तो ये वैक्टर के नाल नहीं मिलता, किस दे नाल मिलता है, स्केलर के नाल। तो दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ which has magnitude as well as direction but have algebra, ordinary algebra of addition and subtraction। एग्जाम्पल के लिए देखो अपने को करंट है, करंट जो है अगर आप इसनों समझिए 10th में आप ये चीज़ पढ़ी हुई है करंट के बारे, तो क्या होएगा कि अगर मान लो इस डायरेक्शन तो करंट आ रहा है जी 2 एम्पियर और इस डायरेक्शन तो करंट आ रहा है जी 3 एम्पियर, 2 एम्पियर 3 एम्पियर, और ये वाली जो वायर है तो जो आप इन्हू जोड़ांगे 2 एम्पियर इस डायरेक्शन तो 3 इधरों, तो दोनों का सम की हो जाएगा 3 + 2 5 एम्पियर। हुण देखो जो करंट है, करंट को डायरैक्शन भी होंदी है, जिवें मान लो ये वाला एरो है, अगर ये वाला एरो इस डायरैक्शन है तो मतलब 2 एम्पियर इधर फ्लो कर रहे हैं। अगर मैं मान लो इसकी डायरैक्शन चेंज कर देवां, इसकी डायरैक्शन चेंज करके उल्टी कर देते जाए, रिवर्स करती जाए मान लो ये वाली, तो हुण 2 एम्पियर इधर आ रहा है देखो और 3 एम्पियर इधर जा रहा है। हुण रिजल्ट 5 नहीं होएगा, की होएगा 3 आया 2 इधर चला गया तो 1 एम्पियर, 3 एम्पियर एंटर कर रहा है 2 इधर लीव कर गया तो इत्थे की बचेगा 1 एम्पियर। मतलब डायरैक्शन चेंज करने नाल रिजल्ट चेंज हो रहा है, मतलब करंट दे कोल डायरैक्शन भी है, लेकिन जो इसका प्लस और माइनस हो रहा है वो बिल्कुल इदा हो रहा है जिवें स्केलर का प्लस माइनस होंदा है।
ਬਿਲਕੁਲ ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 60 kg ਮਾਸ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 20 kg ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨਾ ਬਚੇਗਾ? ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਕਿੰਨਾ ਬਚੇਗਾ ਪਿੱਛੇ? 40 kg। ਆਰਡੀਨਰੀ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ, ਕਰੰਟ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਆਰਡੀਨਰੀ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਂਪੀਅਰ, 2 ਐਂਪੀਅਰ, 3 ਐਂਪੀਅਰ ਇਹ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਹੈ। ਔਰ अगर एंटर हो रहा है डायरैक्शन अलग है, अगर लीव हो रहा है तो डायरैक्शन अलग है। तो डायरैक्शन भी है इसके कोल, लेकिन जो इसका प्लस या माइनस हो रहा है तो बिल्कुल ऑर्डिनरी तरीके दे नाल इसका प्लस और माइनस हो रहा है। हाँ जी स्टूडेंट्स, एक बार जो बोर्ड के उपर लिखा है इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तब इस तो बाद फिर आप अगे पढ़ांगे। हजे जस्ट स्टार्ट है, इंट्रोडक्शन है, अगे देखो क्या क्या होंदा है, तो नोट कर लो।